Hello students, in this class we will be dealing with the methods of structure analysis. Now in this topic let's start with the very basic. You know that the analysis of any structure, the analysis of a structure can be done in two different ways depending upon the type of a structure. One type of analysis is determinate analysis. This is determinate analysis and another is indeterminate analysis. Indeterminate analysis. In the strength of material, we have performed the determinate analysis in which you have the proper equilibrium equation, that is 3 number of equilibrium equation. With that, you have some reactions which are unknown reactions. So, in case of determinate analysis, what you were doing, you were calculating the degree of static indeterminacy, that was 0 basically, because the number of unknown reaction which you have that were basically equal to the number of equilibrium equations, so they get neutralized. In case of indeterminate analysis, you have certain unknown number of reactions. You have certain unknown number of reactions and those reactions cannot be determined. Those reactions cannot be determined. You cannot determine those reactions with the use of equilibrium equation. सीधा equilibrium equation का use नहीं हो सकता. Equilibrium equation क्या क्या था? Summation fx0, axial force 0, summation fy0, shear force 0 and summation mz0. ये तीनों movement नहीं होने चाहिए थे. These three movements are to be prevented. But the point is that sometimes the number of reactions, number of unknown reactions becomes greater than these three equilibrium equation. In that case, you will be requiring some addition equation. Those addition equations can be provided by two different methods. One is force method, and another is displacement method. Force method and displacement method. These are the two different methods which this is displacement method which provide you some extra equation. Displacement method. अब फोर्स मेथड डिस्प्लेसमेंट में कौन सी मेथड है? कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा इक्वेशंस देते हैं. किसके लिए? जब आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ऊपर चली जाती है नंबर ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द फोर्स मेथड इज? द फोर्स मेथड इज बेसिकली also known as the compatibility method. It is also known as the compatibility method. It is also known as the flexibility method, and it is also known as the method of consistent deformation. Method of consistent deformation ये भी बोला जाता है इसको, फोर्स मेथड को. फोर्स मेथड का यूज तब आता है when the reactions are more than the equilibrium equations and the unknowns are basically considered as reactions. The unknowns are basically considered as the reactions or the redundant forces. This method is applied when the degree of static indeterminacy is less than the kinematic indeterminacy and the number of unknowns are basically equal to the value of static indeterminacy. This is the number of unknowns. So what you have to do is that you have to first calculate the static indeterminacy. From there you will get the number of unknowns. Those number of unknowns are basically equal to the unknown reaction which you have to calculate, जो आपको निकालना होता है. ठीक है. अलग अलग टाइप के फोर्स मेथड होते हैं. there are different force method. That is for example strain energy method और minimum potential energy method भी बोलते हैं इसको. minimum potential energy method और यूनिट लोड मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं इसको. तो ये सारे मेथड्स होते हैं. थ्री मोमेंट थ्योरम. तो ऑल दीज मेथड्स आर बेसिकली द फोर्स मेथड्स. नाउ द अनदर टाइप ऑफ मेथड इज डिस्प्लेसमेंट मेथड. डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करा जाता है? यहां पे अननोन रिएक्शंस को लिखा जाता है. रिएक्शन निकालने के लिए इक्वेशन लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट मेथड बात करता है जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स की. जॉइंट डिस्प्लेसमेंट की मतलब बेसिकली काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट की. तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट और द फ्री बॉडी डिस्प्लेसमेंट. आपको याद होगा पहले चैप्टर में बताया था मैंने. दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. ये मेथड तो अप्लाई किया जाता है. This method generally consider the unknown to be the displacements and then it can calculate the those displacement. अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं ये. फॉर एग्जांपल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्टिफनेस मेथड, जो भी मैट्रिक्स मेथड होते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड. तो ये सारे मेथड इसके अंदर आते हैं.
Basically what you have to do is that you have to calculate the values of unknown reactions. The unknown reactions can be calculated by using these two methods, by using the properties of cross section. By using the properties of cross section, मतलब आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके ये मेथड लगा सकते हो. प्रॉपर्टीज का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस, moment of inertia, area. All these things are used here for the calculation of the reactions. There are unknown reactions here by the use of force or displacement method. The point is that sometimes the reactions are greater than the equilibrium equation and you will not know the properties of cross section. अगर रिएक्शन कम है और प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं होती तब तो. अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती क्योंकि फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाना पड़ता है. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं और रिएक्शंस आर मोर देन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इन दोस केसेस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज सम स्पेशल मेथड व्हेन द रिएक्शंस आर ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस and you don't have and we don't know the properties of cross section. We don't know the properties, and in that case what you have to do is that you have to use some special method. Those methods are the Portal method, the cantilever method, and the factor method. These are the methods which are used when the reactions are large in number and you don't have the properties of cross section. In those cases, you have to use this particular method. Fine. So we will start with the basic strain energy method first of all. But before that, let's understand this very small concept, that is Bette's law. That is Bette's law. एक छोटा सा लॉ दिया था इस बंदे ने, वो समझ लेते हैं क्या है. ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं. मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, वैसे ही समझना और वैसे ही अप्लाई करना, एकदम करेक्ट आंसर आता है. ये मेरे पास एक बीम है, ठीक है, बीम जिसके सिंपली सपोर्टेड बीम है. इस बीम में व्हाट यू डिड, यू हैव जस्ट अप्लाइड अ लोड ऑफ पी हियर. आपने पी लोड लगाया, ठीक है. पी लोड की वजह से कुछ डिफ्लेक्ट होगा. मान लो इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होती है बीम. जब ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, ये मान लो एक पोर्शन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये जो डी पोर्शन है, इस डी पोर्शन पे डिफ्लेक्शन आता है डेल पी. पी की वजह से डी पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, दिस इज डेल पी. सिमिलरली अब आपने क्या किया, आपने इस पी की जगह अब आपने एक और, ये सेम बीम है आपके पास, सेम है, पी को हटा दिया. आपने कहा मुझे पी पसंद नहीं आ रहा है, ये मेरे पास हिंज सपोर्ट है और ये मेरे पास रोलर सपोर्ट है. अब मैंने क्या किया, इस डी पे एक लोड लगाया क्यू. जब मैं डी पे क्यू लोड लगाया तो मेरा डिफ्लेक्शन को जिस तरीके से किया, मान लो फॉर एग्जांपल द डिफ्लेक्शन गोज लाइक दिस. ये कुछ इस तरह से इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ. अभी क्यू के नीचे तो ठीक है जो हो रहा होगा, बट अभी जो सी पोर्शन था, ये था मेरा डी. ये जो सी पोर्शन था, इस सी पे डिफ्लेक्शन आता है डेल ऑफ क्यू. ठीक, पी लगाया था, डी पे देखा, क्यू लगाया, सी पे देखा. बेटीज लॉ ये कहता है कि जब आप ऐसी चीजें कर रहे हो, इधर लगा के उधर देख रहे हो, तो इन दैट केस इज दिस अ थ्योरम व्हिच विल ऑलवेज बी वैलिड, दैट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी will be due to the load at point D. The deflection at point D will be due to the load at point C. तो उसने ये बोला the total work done by P system of forces will be equal to the total work done by Q system of forces. That is basically this P into delta Q. This will be equal to Q into delta P. This is the thing which you have to रिमेंबर. जब P लगा रहे हो तो Q पे जो इफेक्ट, D पे जो इफेक्ट आ रहा है, जब Q लगा रहे हो वही सेम इफेक्ट C पे आ रहा होगा. ये एक थ्योरम है, P इंटू डेल्टा Q, Q इंटू डेल्टा P. मतलब जिसके नीचे जो लग रहा है मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सीधा, सिंपल सी बात है. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल स्मॉल क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर हिंज आर्क है, सेमी सर्कुलर टू हिंज आर्क है. उस आर्क के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि ऑन अ पॉइंट ए, एक आपके में ए नहीं है, बी है एक्चुअली. आपने एक बेंडिंग मोमेंट लगाया बी पॉइंट पे, दैट मोमेंट इज 50 किलो न्यूटन मीटर. आपने मोमेंट लगाया बी पे और इसने डी पे, ए पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया. बी पे लगाया तो ए पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 सेंटीमीटर.
ये आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड ए दैट यू विल अप्लाइड एट पॉइंट ए सो दैट, नहीं लोड ए दिया हुआ है, दे आर सेइंग दैट कि यू आर नाउ अप्लाइंग अ लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एट ए एंड दे आर सेइंग दैट व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन और रोटेशन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट बी। मतलब बेसिकली इतना लगाया तो दूसरे पॉइंट पे इतना आया, दूसरे पॉइंट पे जब इतना लोड लगा तो इस पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा ये पूछा है। तो एम बी के नीचे थीटा भी होगा, आप जानते हो, दिस विल बी इक्वल टू 10 के नीचे 0.5 होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, इट मींस थीटा बी विल बी इक्वल टू 0.1 वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा बी। फाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके नीचे जो हो वो लगा देना। Now let's understand with the basic method, which is the force method, and this is known as the strain energy method. This is strain energy method. इसको समझ लेते हैं strain energy method को। strain energy method क्या कहता है? strain energy method ये कहता है कि the potential energy should be minimum. Potential energy should be minimum. इस मेथड को लगाते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू ब्रेक द फ्रेम और बीम इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उसके बाद हर पार्ट के लिए इंडिविजुअल पार्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करोगे। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। उसके बाद उस सबको ऐड कर दोगे और उस सबको ऐड करके जीरो के बराबर रख दोगे। पोटेंशियल एनर्जी तभी तो मिनिमम होगी जब जीरो के बराबर रखोगे। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट डीएस निकालो। डीएस निकालने के बाद यू विल बी नोइंग कि मेरे पास कितना अननोन है, अननोन मुझे पता लग जाएगा। फॉर दैट पर्टिकुलर अननोन, फॉर एग्जांपल रिएक्शन आर इज अननोन, So for that particular case, you will first write the total strain energy. The total strain energy is basically, अगर आप total strain energy लिखते हो, this is integral mx square dot, जो आप strain energy जनरल लिखते हो, dx divided by 2ei, ये strain energy होता है। It means that for this particular unknown reaction, the energy will be minimum. This is del u over del r. This should be equal to 0. मतलब आप क्या करोगे, you will differentiate this. जितना वैल्यू अननोन है, अगर आपके पास del u over del r के बाद एक ma भी आपका अननोन है तो तब भी एक और लिखोगे, दिस इज del u over del ma इक्वल टू 0। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों अननोन्स की वैल्यू निकालोगे r और ma की। बेसिकली पॉइंट इज दैट कि आपको यूज तभी करना फॉर्मूला क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप नहीं निकाल सकते। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के ऊपर जा रही है अननोन वैल्यूज। अगर उनमें से एक अननोन वैल्यूज इज r, दूसरी इज ma, तो in that case you have to calculate these values. To calculate these values, you have to write some extra equation. Those extra equations are these equations because you have two unknowns. You have to write two different equations for which the potential energy should be minimum. Potential energy आपको minimum करनी होती है, बेस हमारा यही कहता है। अब अगर आप del u over del r को equal to 0 रखते हो तो it means that this will be 2mx, डिफरेंशिएट करना है आपको। This is del of mx divided by del r, r के रिस्पेक्ट में आपने करना है, इनटू डेल एस जो भी चल रहा होगा आपका डिस्टेंस एक्स और वाई हो, डिवाइडेड बाय 2ei. दिस इज समेशन, दिस 2 will get cancelled out. It means that you will get the equation, that equation will be mx dmx divided by dr dot ds, जो भी डिस्टेंस चल रहा है, डिवाइडेड बाय e into i. This should be equal to 0. तो ये एक इक्वेशन हो गई आपके पास। Similarly, if you want to write the equation for this will be, this is mx del mx divided by del of ma divided by ei. This is equal to 0 into ds. दूसरी इक्वेशन ये हो गई। दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द अननोन वैल्यूज। वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहले आपको अननोन ढूंढना है, कौन सा अननोन है, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट। एक क्वेश्चन का एग्जांपल देते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज गिवन टू अस। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ फ्रेम, दिस इज अ फ्रेम व्हिच वी हैव, and in this frame they are saying that this is the hinge support, this is also a hinge support, there is a load P which is acting here, this is at a distance of L by 2, this is L, this is L, this is A, this is B, C, D and this point is E. ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। they are asking us to calculate the value of unknown or calculate the value of all the reaction and also draw the BMD बनाना है।
सबसे पहले यू नो दैट कि यहां पे जो रिएक्शन होगा दिस विल बी आर ए, दिस विल बी एच ए, दिस विल बी आर डी एंड दिस विल बी एच डी. ये तो रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी. इट मींस दैट अगर आप स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हो दिस विल बी 4 - 3, दिस विल बी 1. इसका मतलब यहाँ पे एक 1 डिग्री इंडिटरमिनेसी एक ही अननोन होगा जो आपको निकालना पड़ेगा. कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सिंगल लिखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं. बाकी चीजों को कैलकुलेट करने का मतलब है जो चीज निकाल सकते हो उसको निकाल लो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल यूज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन. तो सबसे पहले व्हाट यू नो इज दैट summation of fx equal to 0. It means that this ha minus hd this is equal to 0. It means that ha is equal to hd बराबर है. इसको h बोल देता हूं मैं कि h is equal to hd this is equal to h बोल दिया मैंने. बराबर है, चलो मान लिया, मान के लिए दिख ही रहा है. Now the point is that this ra plus rd this is equal to p. Summation of ma equal to 0 कर दो अगर तो you will get rd into L minus p into L by 2 this is equal to 0. From here you will get rd this is equal to p by 2, and if rd is p by 2 then ra will also be equal to p by 2. ra is also p by 2, rd is also p by 2. दोनों बराबर हो गए ra और rd. It means that now you have out of the remaining आपके पास वैल्यूज क्या क्या थी अननोन. एक ra अननोन था वो निकल गया p by 2. एक rd अननोन था that you have also calculated. The other was HA that was equal to HB. मिल गया, and this is also unknown. It means basically we will be requiring 3 different equations for the calculation. Now you have already calculated RA and RD. One thing which is remaining is H. It means this 1 degree is due to the unknown value H, which is basically equal to HA and HD. दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है उनका बस. तो point is that we have to calculate this unknown value of H. To calculate this unknown value of H, you have to put the potential energy to be minimum. The potential energy to be minimum means you have to write del U over del H equal to 0. That is, this is mx d del mx divided by del H into जो भी डिस्टेंस चल रहा है divided by EI. This is equal to 0. This will be the equation which you will be requiring for the calculation of H. अब पॉइंट ये कहता है कि आप ये समेशन लगाया है, इट मींस यू हैव टू ब्रेक और उस सबको ऐड करना है इंडिविजुअली. इंडिविजुअली ऐड किसको करना है, मेंबर्स को ऐड करना है इंडिविजुअली. नाउ लेट्स कंसीडर द मेंबर्स सेपरेटली. आपके पास एक फिगर था, दैट फिगर वाज लाइक दिस वाज द फ्रेम व्हिच वाज गिवन टू अस. ध्यान से समझ लेना, किस तरीके से समझा रहा हूं वैसे ही करना जैसे बता रहा हूं. ये आपको फ्रेम दिया हुआ था, दिस वाज द फ्रेम व्हिच वाज विद यू, एंड इन दिस फ्रेम दिस वाज द फ्रेम. यहां पे आपका लोड लगा था P किलो न्यूटन का. ये था आपका A, दिस वाज B, दिस इज C, D ना, ये नहीं था. दिस वाज A एंड इसको B लिया था आपने, इसको C लिया था, दिस वाज D एंड दिस वाज E. ये था आपका केस. इसका मतलब यू हैव डिफरेंट मेंबर्स. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मेंबर्स को अलग अलग लेके उन सबको एनालाइज कर लेते हैं. समीशन का मतलब ए बी बी ई सी और सी डी सबके लिए ये चीजें लिखनी है और सबको बराबर रखना है इक्वल टू 0. आपको याद होगा हमने जब ऐड करके स्ट्रेनर्जी मेथड पढ़ा था सोम में, देन इन दैट मेथड आल्सो वी हैव स्टडीड द सेम, दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी सेपरेटली फॉर ईच एंड एवरी मेंबर. Then you have to add those energies, then you have to differentiate the energy to get the value of deflection. It means that मैंने से आपको बताया, firstly you have to break the structure into different parts, then you have to write the energy of different parts. You have to add the energies of the different parts, then you have to differentiate that. यहाँ भी वही करना है, यहाँ differentiate करके add कर देना हो, बात तो एक ही है. Add तो मुझे करना ही करना है. It means that now first we have to break that into different members. So let's create a table here. उस टेबल में यहाँ लिख देते हैं this is member, जो भी मेंबर होगा उस मेंबर की बात करेंगे. दिस इज द मोमेंट mx, जो भी mx होगा. ये मेरे पास डेल mx डिवाइडेड बाय डेल h होगा, जो भी होगा उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा. यहां मैं उसकी लिमिट लिख दूंगा मेंबर की, व्हाटएवर द लिमिट ऑफ द मेंबर इज. ये हमारी टेबल बना लेते हैं. लेट्स कंसीडर अ टेबल हियर. लेट्स सी दिस. ये टेबल बन गया अपना एक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू राइट डिफरेंट मेंबर्स हियर. अब मेंबर्स वन बाय वन लिखते चले जाना है, उसके बाद उनका मोमेंट लिखते चले जाना है, एंड देन यू हैव टू राइट द लिमिट, एंड उसके बाद कर देंगे उसको इंटीग्रेट. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेंबर इज ए बी. पहला मेंबर है आपके पास ए बी. दिस इज ए बी, दिस इज फर्स्ट मेंबर. नाउ यू हैव टू राइट mx. mx का मतलब होता है, अब यहाँ पे mx my एक ही चीज है. यहां से आपने क्या करना है, अभी x में तो चल नहीं रहा है तो y जाएगा, ऑब्वियसली बात है. दिस इज
my। तो ये आपने y डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, जिसको आपने होल्ड किया, एक करके सबके लिए लिखते चले जाना है आपको। फाइन, y डिस्टेंस लिखा। अब यहाँ पे अगर आप my लिखोगे तो यहाँ पे इसको mx करके इसको /my भी कर देते हैं कि अगर myx है या फिर इट विल बी my, एक ही चीज है। Now, if you will write my here, the my will be, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, outer face is the reference face। अगर outer face का मतलब होता है ये बाहर वाला फेस, अगर इसमें ऐसा C बनेगा, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इसमें D बनेगा, हॉगिंग होगा तो नेगेटिव होगा। फोर्स का नेचर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। फोर्सेस यहां लग रहा है मेरा RA, यहां लग रहा था मेरा H, यहां लग रहा है हमारा RD, और यहां पे भी हमारे लग रहा है H, HEH बराबर है। Now you have to write the forces का इफेक्ट my, इसको होल्ड किया, RA का तो जीरो ही है इफेक्ट, बट H का इफेक्ट आ रहा है। H इसको क्या बना रहा है, D बना रहा है, इसका मतलब दिस विल बी, अगर आप इसको लिखते हो तो इसका इफेक्ट आएगा माइनस का H इंटू y, dmx अपॉन dh करते हुए आएगा माइनस का y। लिमिट लगाओगे इसकी तो 0 टू L तक है AB। नेक्स्ट मेंबर इज BE, नेक्स्ट मेंबर आपका BE है, मतलब आप यहां से कट करोगे। लेट्स से दैट वी हैव कंसीडर्ड अ सेक्शन एट डिस्टेंस ऑफ x। अब आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इफ यू आर राइटिंग mx, तो एक तो RA इंटू एक्स, ये तो रहना ही रहना है RA इंटू एक्स। RA का मतलब है p/2, आप ऑलरेडी निकाल चुके, तो p/2 इंटू एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये बात करते हैं H की, RA का उल्टा इफेक्ट दे रहा है, दिस विल बी माइनस का H इंटू L, ये पूरा का पूरा L तक जाएगा, यहां से यहां तक का मोमेंट पूरा ट्रांसफर होगा H इंटू L, इस पे ऐसे का ऐसे। इट मींस दैट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन दिस विल बी p/2 इंटू एक्स माइनस का H इंटू L। अगर आप इससे dmx अपॉन dh करते हो तो यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी माइनस का L, ये माइनस का L हो गया है। इसका लिमिट क्या है, किसका मेंबर की बात करो, B से E की बात करो, दिस इज 0 टू L/2। बाकी दोनों मेंबर EC के जैसा है और CD सेम AB के जैसा है, तो उसको ट्वाइस कर देंगे हम टोटल को। इट मींस दैट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू राइट द समेशन, दिस समेशन इक्वल टू 0। अभी क्या करना है आपको, समेशन को 0 रखना है। समेशन को 0 करने का मतलब यू हैव टू राइट दिस del U ओवर del H, दिस इज इक्वल टू 0। समेशन को 0 रखना, इट मींस यू हैव टू राइट समेशन ऑफ mx into dmx divided by dh into ds divided by ei, इसको 0 रखना है आपको, समेशन को ये 0 रखना है। देखो दिस विल बी इक्वल टू mx, सबसे पहले आपका क्या है, माइनस का h इंटू वाई, दिस इज माइनस h इंटू वाई, dmx अपॉन dh, दिस इज माइनस का y, इसका डॉट ds। अब ये y भी चल रहा है तो ds का मतलब जनरल डिस्टेंस है, इसको मैं y कर दूंगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, डिवाइडेड बाय ei, डिवाइडेड बाय ei। इंटीग्रल लिमिट बताओ 0 से L, जैसे समझा रहा हूं वैसे ही लगाना, एकदम बढ़िया शानदार आंसर आता है। प्लस दोबारा से इंटीग्रल लिमिट इज 0 से L/2 mx p अपॉन 2 x माइनस का h इंटू L, ये mx हो गया, dmx अपॉन dh, दिस इज माइनस का L, दिस इज माइनस का L इंटू, अभी x पे चल रहा है तो ds का मतलब dx डिवाइडेड बाय ei, दिस इज इक्वल टू 0। और क्योंकि ये मेंबर सिमेट्री है तो इट मींस दैट इस पूरे को यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो मल्टीप्लाई करके मैं दिखाना है क्योंकि अल्टीमेटली 2 को तो 0 में ही जाना है, कोई यूज नहीं। फाइन, तो ये हो गया आपके पास पूरा सिस्टम, समेशन दोनों का जो आपने ऐड करके लिखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, h। आप इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब सीधा यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। अब h करने के लिए तो आपको पता है y को मल्टीप्लाई करो, अंदर इंटीग्रेट करो, 0 से L डालो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h और 0 के बराबर रखो। यहां से जब आप h कैलकुलेट करोगे यू विल गेट h इज इक्वल टू 3/40 टाइम्स p, ये आएगी आपकी h की वैल्यू। It means that now you have the value of RA, you have the value of RD, now you have the value of H also। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ये तो H तो निकाल लिया। अब BMD की बात करते हैं। As we know that if you want to draw the BMD then you have to calculate the bending moment at each and every point, हर पॉइंट पे निकालना है आपका। सबसे पहले आपके पास मेंबर था AB, AB में अगर आपने my लिखा था तो ये आया था आपका माइनस का H इंटू वाई। अगर आप MA लिखते हो A पॉइंट पे तो दिस इज 0, अगर आप MB लिखते हो तो y को लगाओगे L, तो दिस विल बी माइनस का 3PL अपॉन 40 माइनस का, इसका मतलब ये हॉगिंग हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास पार्ट था BE, बाकी तो सिमेट्री है। BE पार्ट में अगर आपने बेंडिंग मोमेंट लिखा था mx का तो mx वाज
p/2 इंटू एक्स माइनस का h इंटू एल। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं m अबाउट b, तो इसका मतलब x को 0 रख दूंगा तो दिस विल बी माइनस का 3p/L/40, तो आएगा ही आएगा BE में। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं m अबाउट e, तो दिस ME विल बी, L को कितना रख दूंगा, L/2, x को रख दोगे L/2, इट मींस दिस वैल्यू विल बी 7p/L/40 पॉजिटिव। ये तो हो गया आपका हॉगिंग, ये हो गया आपका सैगिंग, एंड दिस इज अगेन हॉगिंग, ये था आपका हॉगिंग। नाउ यू हैव टू डू, दूसरा तो सिमेट्री है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले बना लो आप फ्रेम, जो आपको फ्रेम बनाना है जिसपे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस वाज आवर फ्रेम, ये हमारा फ्रेम था। इसमें सपोर्ट कंडीशन दिखा लेते हैं, दिस इज इन सपोर्ट, दिस इज इन सपोर्ट। पॉइंट्स बना लो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, और यहां पे था ई। अब आपको बनाना है इसका बीएमडी। बीएमडी बनाने के लिए वैल्यूज आपके पास है। पॉजिटिव जो होगा हमेशा ध्यान रखना उसे अंदर बनाओगे, नेगेटिव जो होगा उसे बाहर बनाओगे। एम ए 0 है, एम बी माइनस का 3pl/40, तो यहां से 3pl/40 माइनस का, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसको बाहर भेज दिया। फोर्स मेथड के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नेगेटिव मतलब बाहर, पॉजिटिव मतलब अंदर। अब फिर से ये तो ए बी के लिए हो गया, अब बीई के लिए आ जाओ। बीई में फिर से बी पे माइनस का 3pl/40 नेगेटिव, तो फिर से बाहर 3pl/40, दिस इज माइनस का 3pl/40। अब ये कहां तक जा रहा है, 7pl/40 पॉजिटिव, तो 7pl/40 पॉजिटिव मतलब ये जाएगा अंदर कुछ यहाँ पे। अब फिर से तो सेम ही जाने वाला है, फिर से अगेन इट विल गो लाइक दिस, क्योंकि दोनों सिमेट्री है। इट विल अगेन गो लाइक दिस 3pl/40, ये जाएगा 3pl/40 यहां तक। उसके बाद फिर सी से जाके जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, नेगेटिव का 3pl/40, सिमेट्री है ना एकदम एक जैसा है, and this will be 0. It means that your bending moment diagram will be somewhat like this, and one thing you have to remember, that bending moment diagram will be shaded perpendicular to the length of the span. जैसे ही स्पैन है उसके परपेंडिकुलर इसको शेड किया जाता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कन्वेंशन होता है, सो में भी मैंने आपको बताया था, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ही करते हैं हम ऐसे करके शेड। जो भी हमारा स्पैन होता है उसके परपेंडिकुलर इसको शेड किया जाता है। दिस इज अ स्पैन हियर, यू हैव टू शेड इट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया, इसको भी ऐसे ही शेड किया जाएगा, ये भी ऐसे ही शेडेड होगा, ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू शेड इट लाइक दिस ओनली, क्योंकि स्पैन यहाँ पे हमारा ये वाला है, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे स्पैन ये है, यहाँ पे स्पैन ये है, तो इसको परपेंडिकुलर स्पैन के शेड किया जाता है। दिस इज द कन्वेंशन। करने का मनो करो, नहीं करने का मनो मत करो, गलत नहीं होगा, बट कन्वेंशन है। नाउ इफ यू विल कंसीडर दिस, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस अंदर वाला इज पॉजिटिव, अगेन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। It means that this is 7pl/40, this is 3pl/40। साइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर का मतलब नेगेटिव ही होता है। 3pl/40, this is 3pl/40 and this is also 3pl/40. This will be the case. If someone will ask you the point of counterfacture, this is the point of counterfacture, this is the point of counterfacture. It means there are basically, in this particular case, there are 2 points of counterfacture where the bending moment is changing sign from negative to positive or positive to negative. Fine. इस तरीके से बनाते हैं। आउटर फेस इज ऑल्सो द रेफरेंस फेस, आउटर फेस इज द रेफरेंस फेस, ठीक। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड व्हिच इज द फर्स्ट मेथड। तो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज। अगर और अननोन होता तो एक और इक्वेशन बना लेते, उसको सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जितना है उतना निकाल के ले जाओ। जैसे मेथड को बताया बिल्कुल वैसे ही करना। इस मेथड को एक बार अपने फिर से क्वेश्चन को लिख के दोबारा इसको सॉल्व करना। फाइन, इट्स एस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।